Hello everyone, I welcome you all on the official channel of Erudition Studies। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ Erudition Studies ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਕਲੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੰਥ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲਡ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮਰਾਠਾਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮਰਾਠਾ ਤੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ PS PCL ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, PPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ETT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ETT ਦਾ ਪੇਪਰ 2 ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਪੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 105 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ 105 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਆਲਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ MCQ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਓਕੇ। ਯੈਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਟੂ ਅਰਾਈਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡੱਚ, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਮਸਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਲਾਸਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਲੀਵ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਡੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼। ਲਾਸਟ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਗਈ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, PDEDF ਹੈ ਨਾ, यानी कि पहला पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर आई है इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आफ्टर दैट डैनिश आए हैं, लास्ट ते फ्रेंच आए ने। अगर तुसी ए वाले सैशनस डिटेल दे विच देखने मिस किते हैं तो 6 ਦੇ 6 ਦਾ ਲੈਕਚਰ जो है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ प्ले लिस्ट है जिसनों कि मैं कमेंट सैक्शन दे विच डिस्क्रिप्शन दे विच दोनों विच दे दूंगी। ठीक है, तुसी उस लिंक तो जाके ਇਹਨਾਂ ਦੀ डिटेल जरूर देख लेना। आफ्टर दैट ये वाले MCQ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਓਕੇ, ਯੈਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਦ ਰੂਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਖੋਜਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੇ ਅਲਮੇਡਾ, ਨੀਨੋ ਦੇ ਕੁਨਹਾ, ਵੈਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ, ਐਲਫੋਂਸੋ ਦੇ ਐਲਬੂਕਰਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਵੈਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ। ऑलराइट, ਤਾਂ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈ, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਦੋਂ? 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਨੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਵੇਅਰ ਦ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ देयर फर्स्ट फैक्ट्री? ਤਾਂ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੋ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਚੀਨ ਕੇਰਲਾ, ਮਸੌਲੀਪਟਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੂਰਤ ਐਂਡ ਟੈਂਕਬਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੋਚੀਨ ਕੇਰਲਾ। ऑलराइट, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ KK ਮਤਲਬ ਕੋਚੀਨ ਕੇਰਲਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ KK ਮਤਲਬ कन्नूर केरला। ओके, तो इन्हां दियां पहलियां दोनों ही फैक्ट्रीज केरला दे विच हैगियां, पहली है कोचीन एंड दूसरी रहेगी कन्नूर। ओके, तो जिहड़ी कोचीन वाली फैक्ट्री है पहली वो इन्हां ने 1503 दे विच इत्थे एस्टैबलिश कीती सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द नेम ऑफ what was the name of the company established by the Portuguese? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤਾ कि पोर्चुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री केरला दे विच लगाई सी, है ना, केरला दे विच कोचीन विच, है ना। बट हुण इत्थे फैक्ट्री की गल नहीं हो रही, इत्थे गल हो रही है कंपनी दी, यानी कि जिहड़ी पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है उस कंपनी का नाम की है। ओके, तो इस कंपनी का नाम रहेगा एस्टेडो दे इंडिया कंपनी। ऑलराइट, एस्टेडो दे इंडिया ये है वो पोर्चुगीज कंपनी जो इंडिया दे लई एस्टैबलिश की गई सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैबलिश देयर फर्स्ट सेंटर? तो जो डच की कंपनी है इन्हां ने भारत दे विच पहला सेंटर केड़ी जगह ते एस्टैबलिश किया? आंसर रहेगा जी मसौलीपट्टनम। ओके, तो मसौलीपट्टनम की लोकेशन केड़ी जगह ते मिलेगी? ये है जी आंध्रा प्रदेश दे विच, है ना। असी हुणे ही कीता सीगा कि जो पोर्चुगीज है इन्हों ने पहली फैक्ट्री कित्थे लगाई? कोचीन केरला दे विच। ते जिहड़े डच है इन्हों ने अपना पहला सेंटर कित्थे बनाया आ? मसौलीपट्टनम आंध्रा प्रदेश दे विच। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन टेक्सटाइल विच वर यूज्ड बाय द डच इन द अफ्रीकन स्लेव ट्रेड वॉर? देखो इत्थे पूछा गया है कि जिहड़ी डच ईस्ट इंडिया कंपनी सी उन्होंने ना इंडिया दे विच टैक्सटाइल नू यूज़ करना स्टार्ट किया सीगा अफ्रीका दे स्लेव ट्रेड दे विच। तां किस तरह के टैक्सटाइल नू, किस तरह के कपड़े नू यूज़ करते सी? ओके, तो आंसर है प्लेन डाइड टैक्सटाइल। ठीक है, इन्हां दे वल्लों प्लेन डाई किते हुए टैक्सटाइल यूज़ किए जाते सी। किहड़ी कंपनी वल्लों? डच ईस्ट इंडिया कंपनी वल्लों। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, हु ग्रांटेड द परमिशन to establish the first British factory of Hooghly in Bengal? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ, ਅਲੀ ਵਿਰਦੀ ਖਾਨ, none of the above। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਹੁਗਲੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੇ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, where British East India Company first established its foothold in India। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਜਮਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ, ਸੂਰਤ, ਕੋਚੀ, ਟੈਂਕੋਬਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਜਮਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 1611 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੂਖ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਂਪਰਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਟ ਇਜ਼ 1613, ਆਲਰਾਈਟ। Question number 10. Who was the Emperor of India at the time of the arrival of British East India Company? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਅਕਬਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰਸ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, which was the first fort constructed by the British in India? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜਿਓਰਜ, ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ, ਫੋਰਟ ਡੇਵਿਡ ਐਂਡ ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਐਂਜਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜਿਓਰਜ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਓਰਜ ਫੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਫੋਰਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਸੇਂਟ ਫੋਰਟ ਜਿਓਰਜ। ਓਕੇ, ਯੈਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਐਕਸਪੈਲਡ ਬਾय ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ? ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ, ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਸਰ ਜੋਨ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਸਰ ਜੋਨ ਵਿਲੀਅਮ। ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸਰ ਜੋਨ ਚਾਈਲਡ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਟਰੂਪ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਵਿਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਔਰ ਉਸੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਰ ਜੋਨ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਲਰਾਈਟ।
बट इस तो पहला कि सारी दी सारी जो सैटलमेंट है, ये जो मामला है सोल्व हुंदा, उहदे तो पहला ही जॉन चाइल्ड दी डेथ हो गई सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, where British East India Company established their first permanent factory। ਤਾਂ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री किथे एस्टैबलिश की है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ऑप्शंस हैगियां आ मसौलीपट्टनम, गोवा, पुणे एंड सूरत। ओके, तो आंसर की रहेगा जी? इसका आंसर है सूरत। ऑलराइट, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि पहला ये कंपनी एस्टैबलिश भी अपनी फैक्ट्री सूरत विच ही करना चाहती सी, बट इन्होंने फिर अपना पहला सेंटर बिकॉज ऑफ पोर्चुगीज किथे एस्टैबलिश करना पिया सीगा? इन्होंने एस्टैबलिश करना पिया मसौलीपट्टनम दे विच। ओके, पर जिहड़ी इन्हां दी पहली परमानेंट सैटलमेंट है दैट वाज एस्टैबलिश्ड एट सूरत। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। ਤਾਂ पोर्चुगीज ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ठीक है, यानी कि असली दे विच पोर्चुगीज ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ, एल्फोंसो डे एल्बुक्वेर्क, न्यूनो दे कुन्हा एंड बार्थोलोम्यू डियास। ओके, तो इसका आंसर है एल्फोंसो डे एल्बुक्वेर्क। ठीक है, इत्थे तुहानू देख रहे हैं वास्को डी गामा, ये कौन है जी? ये उही पहला पोर्चुगीज ट्रैवलर है जिसने इंडिया दा रूट लभ्या सीगा, है ना। तो इंडिया दे विच आया सी कदों? 1498 दे विच। पर असली जिहड़ी पोर्चुगीज पावर है ये एल्फोंसो डे एल्बुक्वेर्क दे टाइम दे उपर ही इत्थे एस्टैबलिश हुई है इंडिया दे विच पोर्चुगीज दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, गोवा वाज कैप्चर्ड बाय द पोर्चुगीज इन। तो इत्थे पूछा जा रहा है कि जो गोवा है इनू ना पोर्चुगीज ने अपने कब्जे दे विच लिया सीगा। ठीक है, तो इत्थे पूछा गया है कि इन्हां ने गोवा दे उपर कब्जा कदों कीता? तो आंसर है जी 1510 दे विच। 1510 ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 1510 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1961 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, इसलिए तुसी ये वाला जो गोवा दा डे है या जो साल है इनू तुसी अच्छी तरह याद रखोगे। ऑलराइट, तो जो गोवा दे उपर कब्जा किया गया है ना, ये कब्जा किया किने सीगा? तो देखो गोवा दे उपर 1510 दे विच कब्जा किया गया एल्फोंसो डे एल्बुक्वेर्क वालों। ठीक है, तो आपां हुणे कीता कि यही वो पर्सन है जिसनू रियल फाउंडर मनते हैगे आ पोर्चुगीज पावर दा इंडिया दे विच, बिकॉज ऐसे ने ही गोवा नू अपने अंडर लिया सी। ठीक है, तो देखो इत्थे भी ना दो क्वेश्चनस बननगे, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन तुहाडे कोल पूछ सकते हैं कि गोवा नू कैप्चर किसने किया? ठीक है, तो इसका आंसर तो रहेगा एल्फोंसो डे एल्बुक्वेर्क। ओके, बट अगर तुहाडे कोल पूछा जाता है कि गोवा नू अपनी कैपिटल किसने बनाया, ठीक है, तब फिर इसका आंसर एल्फोंसो नहीं होएगा, इसका आंसर रहेगा न्यूनो दे कुन्हा। ओके, तो ये दोनों आंसर अलग अलग रहेंगे, इसलिए इहदे विच तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैबलिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। तो हुण डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किहड़ी जगह ते लगाई है? ऑप्शंस आर सूरत, ट्रेनकुबर, मसौलीपट्टनम एंड कोची। तो इसका आंसर रहेगा ट्रेनकुबर। ठीक है, तो ट्रेनकुबर दे विच इन्हां ने अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैबलिश की है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैबलिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। तो फ्रेंच दी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कित्थे लगाई? सूरत, मसौलीपट्टनम, ट्रेनकुबर, नन ऑफ द अबव। आंसर इज सूरत। तो देखो जदों तुसी गल करोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दी, तो इन्हां दोनों दे विच ना पहली और दूसरी फैक्ट्री नूं तुसी इंटरचेंज करना है। किस तरह? असी ब्रिटिश दा कीता कि इन्हां ने पहला सेंटर बनाया मसौलीपट्टनम, परमानेंट फैक्ट्री दूसरे नंबर ते गई इन्हां दी सूरत दे विच। अगर तुसी फ्रेंच की गल करोगे तो इन्हां दी पहली फैक्ट्री बनी है सूरत दे विच, राइट,
और जो सैकेंड फैक्ट्री है ये इन्होंने मसौलीपट्टनम दे विच बनाई। तो इन्हों तुसी इंटरचेंज करके कोरिलेट करके याद रख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, हु स्टार्टेड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो भारत दे विच जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किने स्टार्ट की सी? तो ये स्टार्ट की गई जी पोर्चुगीज वालों। ठीक है, तो पोर्चुगीज परसन इंडिया विच आए कदों है 1498 दे विच, राइट। और इन्होंने गोवा के उपर कदों कब्जा किया है 1510 दे विच अल्फोंसो ने, राइट। कैपिटल किसने बनाई सी? नूनो दे कुन्हा ने, राइट। और प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने स्टार्ट की और पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा दे विच एस्टैबलिश की गई सी, ऑलराइट। एंड कदों की गई सी? 1556 दे विच। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिड द फर्स्ट अटैम्प्ट टू फाइंड द रूट टू इंडिया। इत्थे पूछा की जा रहा है, पहला क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझना है कि पहला अटैम्प्ट किसने किया इंडिया का रूट खोजन का। ठीक है, ऑप्शंस ने वास्को डी गामा, बार्थोलोमेओ डियाज, ज़मोरिन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर वास्को डी गामा नहीं रहेगा, आंसर है बार्थोलोमेओ डियाज। ठीक है, क्योंकि इत्थे गल की गई है अटैम्प्ट दी, ना कि सक्सैसफुल अटैम्प्ट दी, राइट। अगर तुहाडे कोलों सक्सैसफुल अटैम्प्ट पूछा जाएगा तो नो डाउट आंसर रहेगा वास्को डी गामा, बट अगर तुहाडे कोलों पूछा जाता है जस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट तो इसका आंसर रहेगा बार्थोलोमेओ डियाज। ओके, इन्हें 1487 दे विच ट्राई किया सी, बट बाद दे विच ना केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा जरूर, पर इत्थों ही वापस मुड़ गया सी। ठीक है, 1487 दे विच। बट अगर तुसी वास्को डी गामा की गल करोगे तो 1498 दे विच इंडिया दे विच आया सी। ओके, तो जो बार्थोलोमेओ डियाज है इनू भेजा किसने सी? तो इसनू हैनरी द नेविगेटर ने भेजा सी। ओके, ये इत्थे दा प्रिंस सीगा पोर्चुगल दा, राइट। इन्हें भेजा एंड फिर उस तो बाद ये परसन जो है इनू नेविगेटर क्यों बोलते हैं, हैनरी द नेविगेटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन्हें काफ़ी सारिया जो सी रूट्स है उनदे विच काफ़ी सारिया एक्सपीडिशंस करवाइया सी, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द पर्सन हु फाउंड द सी रूट टू इंडिया। केड़ा परसन है जिसने इंडिया का सी रूट खोजा है? ठीक है, हुण इत्थे खोजन की गल हो रही है, तो इसका स्टेट अवे आंसर की रहेगा वास्को डी गामा, राइट। तो इहदी तुसी देखो ईयर तो याद रखना ही है 1498, बट इहदी तुसी डेट भी याद रखोगे कि ये कदों अराइव किया इसने। ठीक है, तो 20 मई 1498 दे विच इसने इंडिया दे विच अराइव किया सी, राइट। तो ये वाली डेट भी तुहाडे कोलों पूछी जाती है, इसलिए तुसी इसनूं अच्छी तरह याद रखना है। तो अगर असी वास्को डी गामा की गल करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट परसन रहूगा साडे लई। ठीक है, तो वास्को डी गामा वो परसन है जो इंडिया दे विच एक बारी नहीं आया, पहली बारी तो 1498 दे विच ही आया है, बट एक बारी इंडिया दे विच नहीं आया। ये टोटल इंडिया दे विच कितनी बार आया जी? 3 टाइम आया, ऑलराइट। पहली बारी कदों? तो 1498 दे विच पहली बारी आया सी। ओके, और उदों इंडिया दे विच किहड़ी जगह ते पहुंचा सीगा? कैलीकट दे विच, राइट। उस तो बाद दूसरी चीज़, ये दूसरी बारी इंडिया दे विच कदों आया? तो दूसरी बार ये 1501 या 1502 दे विच आया। इन्हां दोनों दे विचों एक ऑप्शन तुहानूं पेपर दे विच मिलेगी। ठीक है, ये सैकेंड टाइम होया। हुण थर्ड टाइम ये इंडिया दे विच कदों आया? तो 1524 दे विच ये इंडिया दे विच तीसरी बारी आया। ओके, और 1524 दे विच ही इसकी जो डेथ है ना, ये कोचीन केरला दे विच यानी इंडिया दे विच ही हो जाती है। तो इत्थे एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो पोर्चुगीज ट्रैवलर किहड़ा सी जिसकी डेथ इंडिया दे विच ही हुई है? तो इसका आंसर है जी वास्को डी गामा, 1524 दे विच डेथ हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया बाय विच सी रूट। असी काफ़ी देर तो गल कर रहे हैं कि वास्को डी गामा ने इंडिया का सी रूट खोजा। हुण इत्थे पूछा जा रहा है उस सी रूट का नाम की है। ओके, रेड सी, ब्लैक सी, केप ऑफ गुड होप, नन ऑफ द अबव। तो आंसर है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, और ये तुहानूं अफ्रीकन कॉन्टीनेंट दे विच मिलेगा, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 22, हु सपोर्टेड वास्को डी गामा इन फाइंडिंग द सी रूट टू इंडिया। तो इंडिया दे विच जदों वास्को डी गामा रूट नूं लभ रहा सी तो फिर उस वेले इहदी हैल्प किसने की सी? ठीक है, इत्थे ऑप्शंस है हैनरी द नेविगेटर,
बार्थोलोम्यू डियाज, कांजी मालम, अहमद इबन माजिद। तो इसका आंसर है जी अहमद इबन माजिदी, ठीक है। और एक अरब नेविगेटर है, एनू एक होर नाम दे नाल जानिया जांदा है, इसनू बोलते ने अमीर अल बाहर अरबी, ओके। एना मतलब हुंदा है द प्रिंस ऑफ द सी इन अरेबिक लैंग्वेज, ओके। और एक चीज़ होर बोली जाती है, क्या जाता है कि एक ना कांजी मलम नाम का भी परसन है, ठीक है, कांजी मलम, इसने भी हैल्प की सीगी किंदी वास्को डी गामा दी, ओके। तो एक गुजराती ट्रैवलर सीगा, जदों मैं तुहानू डिटेल वीडियो करवाई सी, आई थिंक उत्ते कुछ कन्फ्यूजन हुई है, प्लीज़ इत्थे क्लीयर कर लेना, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो ये जो परसन है, मैं शायद इनू गुजराती बोल दिता सी, ठीक है, ये अरेबियन सीगा, ओके, केड़े वाला अहमद अल माजिद, ठीक है। और जो कांजी मलम है ये एक गुजराती ट्रैवलर सी, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 23, एट द टाइम ऑफ पोर्चुगीज हु वॉज द रूलर इन इंडिया। तो जदों पोर्चुगीज आए हैं इंडिया दे विच, उस समय दिल्ली दे विच किस दा राज चल रहा है, ओके। तो ऑप्शंस ने अकबर, जहांगीर, सिकंदर लोधी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा जी सिकंदर लोधी, ठीक है। यानी कि दिल्ली दे विच उस टाइम दिल्ली सल्तनत दे विच नाम चल रहा सीगा सिकंदर लोधी दा, ओके। और तुहानू पता ही है कि एक पोइट सीगा, है ना। तो सिकंदर लोधी किस नाम तो अपनियां पोइम्स लिखदा सी, तो इसका जो पेन नेम है ये सीगा गुलरुखी, ऑलराइट, ये भी तुसी याद रखना है। और एक केड़ी लैंग्वेज दे विच लिखदा सीगा, पर्शियन लैंग्वेज विच, है ना। जदों असी मेडीवल हिस्ट्री करांगे उदों असी इस बारे डिटेल दे विच भी डिस्कस करांगे, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 24, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इंडिया दे विच जो नीले सागर या नीले पानी की पॉलिसी है ये किसने इंट्रोड्यूस की है। ऑप्शंस आर फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, डी ट्रिस्टाओ डे कोन्हा, अल्फोंसो डे अल्बुक्रेक, नीनो डे कोन्हा। तो इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, ओके। इन्हां ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी नू स्टार्ट किया सी। इसका मतलब सीगा कि ये चाहता सी जिहड़े पोर्चुगीज है ना इंडिया के सारे सी रूट के उपर इन्हां दा ही अधिकार हो जाए, सुपर पावर बन जान, इसे दे लई ही ब्लू वाटर पॉलिसी नू स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, विच पोर्चुगीज गवर्नर इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है रिपीट होया है, इसका आंसर है अल्फोंसो डे अल्बुक्रेक, राइट। और इन्हां ने अल्मेडा तो बाद जगह लई सी 1509 दे विच इंडिया दे विच, है ना। और इन्हें ही गोवा नू 1510 दे विच कैप्चर भी किया सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच पोर्चुगीज गवर्नर कैप्चर्ड गोवा। तो किसने कैप्चर किया, ये किया जी अल्फोंसो डे अल्बुक्रेक ने, राइट। और इन्हें किस परसन तो इसनू लिया सी, यानी कि केड़े जगह का राजा सीगा। तो ये जी सुल्तान ऑफ बीजापुर सी जिस तो इन्होंने गोवा नू हथियाया सी, ठीक है। और इस सुल्तान का नाम है यूसुफ आदिल शाह, ओके। 27th क्वेश्चन, हु मेड गोवा एज पोर्चुगीज कैपिटल इन इंडिया। तो गोवा नू इंडिया दे विच पोर्चुगल दी कैपिटल किसने बनाया। अल्फोंसो डे अल्बुक्रेक, नीनो डे कोन्हा, वास्को डे गामा, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज नीनो डे कोन्हा, राइट। 1530 दे विच इसने इसनू कैपिटल बनाया सी। क्वेश्चन नंबर 28, when the Dutch East India Company was established। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी नू कदों एस्टैब्लिश किया गया। 1602 दे विच डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एस्टैब्लिश हो रही है, ठीक है। बट इंडिया दे विच आई कदों है, एस्टैब्लिश 1602 दे विच ही हुई है, बट इंडिया दे विच ये 1605 दे विच आए ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑफ विच कंट्री। तो जिहड़ी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इनका संबंध किस देश के नाल है। इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जी नीदरलैंड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, विच ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इंडिया एज देयर टैक्सटाइल सेंटर। तो इत्थे पूछा जा रहा है कि वो केड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है जिन्हां ने इंडिया नू अपना टैक्सटाइल सेंटर बनाया सी, ठीक है। तो इस दे विच ऑप्शंस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी,
French East India Company and Dutch East India Company? The answer is Dutch East India Company. Okay, देखो मैं जो ऑप्शन रीड आउट कर रही हाँ सिर्फ इसलिए कि तुहानू टाइम मिल जाए आंसर लिखण दा. ओके, तो आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, क्वेश्चन नंबर 31. आफ्टर विच वॉर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइंड? तो वह किहड़ी वॉर सी जिस तो बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्हां दा निगार स्टार्ट हो जाता है इंडिया दे विच, ये खत्म होने लग जाते हैं. ठीक है, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, बैटल ऑफ स्वैली, बैटल ऑफ बडेरा, बैटल ऑफ पलासी. तो इसका आंसर है बैटल ऑफ बडेरा. ऑलराइट, तो जी बैटल ऑफ बडेरा है ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे विच होई सी. ठीक है, तो जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है फिर ये जित गई सी, है ना. और उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव हुंदा सीगा दूसरी साइड. ओके, एंड जिहड़ी है ये बैटल ऑफ पलासी ये पोर्चुगीज दे नाल होई सीगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी. ठीक है, तो जिहड़ी वॉन्डीवॉश दी बैटल है ये इन्हां दी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दे नाल होई है. ते सारियां ही बैटल्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितियां. ओके, एंड फिर इन्हां ने इंडिया दे विच अपने आप नूं प्रॉपरली एस्टैबलिश कर लिया सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 32. व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मड? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये कदों फॉर्म हुई है इसकी फॉर्मेशन दसनी है. 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600, 28 फैबररी 1600, 31 दिसंबर 1605. तो आंसर है 31 दिसंबर 1600 यानी 31 दिसंबर 1600 ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1608 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਗੇਵ ਰਾਇਲ ਚਾਰਟਰ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ जो है अपनी कंपनी एस्टैबलिश करने के लिए रॉयल चार्टर किन्ना ने दिता? क्वीन एलिजाबैथ, किंग जेम्स, क्वीन विक्टोरिया, नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर की रहेगा जी क्वीन एलिजाबैथ. ठीक है, इन्हां दे ही चार्टर के बेस के उपर ये वाली कंपनी जो है इसकी शुरुआत हुई है. ठीक है, और शुरू दे विच इन्हां ने ना फिर कंपनी नूं जदों इंडिया दे विच भेजा सी ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਨੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34. ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਫਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੈਟ ਅਰਾਈਵਡ ਟੂ ਇੰਡੀਆ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਿਪ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਓ ਗੈਬਰੀਅਲ, ਰੈਡ ਡਰੈਗਨ, ਹੈਕਟਰ ਐਂਡ ਪਿੰਟਾ. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਰੈਡ ਡਰੈਗਨ. ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹੀ ਰੈਡ ਡਰੈਗਨ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵੈਲੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਸਵੈਲੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ वर्सेस पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी. राइट, तो इस सवैली की बैटल किहड़े साल दे विच होई है? तो 1612 दे विच. ओके, हाँ जी. इस तो बाद देखो तुसी इत्थे नीचे देख पा रहे होगे साओ गैब्रियल का नाम लिखा होया है ना. ये वो शिप है जिसनों वास्को डे गामा ने यूज़ किया सी. ओके, तो जिहड़ा हैक्टर शिप है इहदे विच कैप्टन हॉकिंस इंडिया दे विच आया सी. ऑलराइट, और जिहड़ा तुहानूं इत्थे शिप दिख रहा ना पिंटा ये कोलंबस ने यूज़ किया सी. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 35. व्हेन कैप्टन हॉकिंस केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर? तो जो कैप्टन हॉकिन है ये जहांगीर के दरबार दे विच कदों आया? तो ये आया जी 1609 दे विच, है ना. और असी हुणे ही किया कि कैप्टन हॉकिंस हैक्टर नाम के शिप दे विच इंडिया दे विच आया सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 36. which title was given by Jahangir to Captain Hawkins? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹੌਕਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ. ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ. ਰਾਈਟ,
ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਦ ਨੈਵੀਗੇਟਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਾਨ, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ? ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀਗਾ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਯੈਸ। Question number 37, where British East India Company established its first factory in Bengal। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ? ਕੈਲਕਟਾ, ਦਾਰਜਿਲਿੰਗ, ਹੂਗਲੀ, ਕੂਚ ਬਹਿਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਹੂਗਲੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਮਸੌਲੀਪਟਨਮ, ਪਹਿਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸੂਰਤ, ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38, ਹੂ ਇਸ਼ੂਡ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਰੂਲਰ ਆਫ ਗੋਲਕੁੰਡਾ, ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ, ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੀਰ ਐਂਡ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3000 ਰੁਪੀਜ਼ ਐਨੂਅਲੀ ਟੈਕਸ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਗਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39, ਨੇਮ ਦ ਵਿਲੇजेस that were merged to make Fort William। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਲੀਕਟ, ਸੁਤਨੈਤੀ, ਗੋਵਿੰਦਪੁਰ, ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਰ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ? ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40, which ruler is known as ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਕਾਇਰ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਰੂਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਕਾਇਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ, ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੀਰ, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੀਰ। ਓਕੇ, ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੀਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੀਰ ਦੀ ਟਰਨ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਪੋਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਨਿਯੋਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਕਾਇਰ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41, whose ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ is known as ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ of the English trade। ਤਾਂ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਇਹ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੀਰ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ, ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਰੂਲਰ, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42, on whose orders Fort William has been constructed। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਨ ਗੋਲਡਸਬਰਗ, ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਸਟਿੰਗਸ, ਸਿਰਾਜੁਦੌਲਾ, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜੌਨ ਗੋਲਡਸਬਰਗ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43, what did Prince Charles get in his dowry। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਕੈਲਕਟਾ, ਬੰਬਾਈਆ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ
ਬੋਮਬਾਹੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ दैट ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਬਈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੀਗੀ ਕੈਥਰੀਨ ਬ੍ਰਿਗੈਂਜ਼ਾ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1662 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਬੰਬੇ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਜॉर्ज ऑक्सिंजन, ऑलराइट। और यही वाला जो बॉम्बे है ये फिर बाद दे विच ना ऐसे प्रिंस चार्लस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नू दे दिता सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਥੋਮਸ ਸਮਿਥ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ, ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਥੋਮਸ ਸਮਿਥ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਵੋਇਜ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ जेम्स लैनकैस्टर, ओके। और एने ही रेड ड्रैगन नाम का जो शिप है जिस दे बारे आपां हुणे ही पढ़िया, रेड ड्रैगन नाम के शिप नू कमांड कीता सीगा जेम्स लैनकैस्टर ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नोन बाय विच नेम इन इट्स इनीशियल डेज? जदों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल शुरू दे विच आई है ना, यानी शुरुआत हुई है जदों इसकी फॉर्मेशन हुई है, उदों इसनूं किस नाम दे नाल बुलाया जांदा सी? एस्टैडो दे इंडिया, देस इंडेस ओरिएंटल्स, जोन कंपनी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जी जोन कंपनी, ओके। एस्टैडो दे इंडिया ये केड़ी कंपनी सी? इसनूं असीं कीता सीगा ये पोर्चुगीज कंपनी है, राइट, ओके। नैक्सट वाली कंपनी आई थिंक अगे क्वेश्चंस विच आ जानी है, इसलिए आई विल नॉट डिस्कस हियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 46, हु सेंट विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर? ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਕਿੰਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੈਕਟਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸਨੇ ਸੀ? ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ, ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ 1, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ 1, ਓਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47, when English East India Company shifted its headquarter from Surat to Bombay? ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1665, 1666, 1667, 1668। The answer is 1668, but sometimes ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 1667 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। अगर 1668 है तो दिस विल बी द आंसर, अगर ये नहीं है और ऑप्शन दे 1667 है तो फिर आंसर 1667 ही रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, द फर्स्ट मिंट इन मुंबई वॉज सेट अप बाय whom? तो पहली बार मुंबई दे विच सिक्के बनाने दे लई जो मिंट है इसनू किस परसन ने एस्टैब्लिश किया सी, ठीक है, किसने सैटअप किया सी? जॉन स्मिथ, गवर्नर ऑंगियर, हैक्टर मुनरो, नन ऑफ द अबव। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਔਂਗੀਅਰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਬਣਾਈ? ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ? 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। बट अगर तुसी गल करदे हो जो मतलब कंस्ट्रक्शन की गई फस्ट चर्च दी, ठीक है, तो यह भी पोर्चुगीज ने ही की सी। किहड़ी जगह ते? केरला दे विच इसनूं कीता गया सी, ठीक है। तो ऐसे चर्च दे विच इन्हां ने एक आर्कीटैक्चर दा यूज़ कीता सी, गोथिक आर्कीटैक्चर दा, यानी कि यह भी फिर सानू पोर्चुगीज ने ही दिता सीगा, ओके। तो जिहड़ी साडी फस्ट मिंट है मुंबई दे विच ਉਹ किन्ना ने लियांदी जी? गवर्नर ऑंगियर ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 49, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हु वॉज द मुगल एम्परर? जदों
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई है उस समय फिर मुगल एंपरर कौन सी? क्वेश्चन नू ध्यान नाल पढ़ना है फिर आंसर करना है। ओके, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा जी अकबर। ओके, तुहाडे विचों कईयां ने जहांगीर आंसर दिता होएगा। किस लिए? देखो, जहांगीर जो राजा है ना, ये उस समय सी जदों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया दे विच आई है। ठीक है, बट इत्थे तुहाडे कोल पुछया गया जदों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी एस्टैब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, तो उदों फिर इत्थे दा जो राजा सीगा, जो एंपरर सी, वो कौन रहेगा जी? अकबर। ऑलराइट, और इंग्लैंड दे विच फिर इन्हां नूं किहड़ी रानी ने दिता सीगा फरमान? एलिजाबैथ ने। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ऑफिशियल केम टू मुगल दरबार? पहला इंग्लिश ऑफिशियल केड़ा सी जो कि मुगल दरबार दे विच आया? थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, जॉन मिल्टन होफ, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जी कैप्टन हॉकिंस। ओके, एक केड़ी शिप दे नाल आया सी? हैक्टर शिप दे नाल, है ना। इस दे नाल नाल इत्थे एक नाम ए वाला भी याद रख लेना, जॉन मिल्टन होफ। ओके, ये आया सी ओ वाला ब्रिटिश है ये जिहड़ा सब तो पहला इंडिया दे विच आया पहली बार। ओके, बट ये किसी मुगल एंपरर दे दरबार दे विच नहीं आया सी, सिर्फ इंडिया दे विच आया। ओके, तो इत्थे सानू पूछा गया मुगल दरबार दे विच पहला इंग्लिश ऑफिशियल कौन आया? तो फिर आंसर रहेगा कैप्टन हॉकिंस। ओके, तो दूसरे नंबर ते कौन आएगा? थॉमस रो आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, वेयर फोर्ट जॉर्ज हैज बीन बिल्ट बाय द ब्रिटिश? तो फोर्ट जॉर्ज जो है इसनू ब्रिटिश वालों कित्थे एस्टैब्लिश किया गया सी? तो आंसर रहेगा मैड्रास दे विच। राइट, कैलकटा दे विच केड़ा आया सीगा? फोर्ट विलियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, वेयर फर्स्ट फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो हुण जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्हां ने अपनी पहली फैक्ट्री कित्थे लगाई? मसोलीपट्टनम, सूरत, त्रैनकुबर, नन ऑफ द अबव। तो आंसर रहेगा जी त्रैनकुबर। ओके, इसकी लोकेशन है तमिलनाडु दे विच। अगर तुसी गल करदे हो मसोलीपट्टनम दी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहला जो मतलब टैंपरेरी सैटलमेंट है ये मसोलीपट्टनम दे विच कीती सी, है ना। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैकेंड एस्टैब्लिशमेंट इत्थे कीती। जो सूरत है इत्थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाई है। राइट, एंड सूरत दे विच दूसरी फैक्ट्री फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दी भी लगी सी। ओके, तो इत्थे जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्हां ने त्रैनकुबर तमिलनाडु दे विच अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कदों लगाई जी? 1620 दे विच। ओके, एंड इस तो बाद तुसी याद रखना है कि ये ज़्यादा देर इंडिया दे विच नहीं टिके। 1845 दे विच ये अपना सारा ही बिजनेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नू वेच के चले गए। ठीक है, तो 1850 दे विच इन्हां दा थोड़ा जा हिस्सा सीगा डैनिश गोल्ड कोस्ट दा, वो भी इन्हां ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नू वेच दिता। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 53, हु वर द लास्ट यूरोपियन केम टू इंडिया? भारत दे विच आउण वाले सब तो आखिरी यूरोपियन किहड़े सी? पोर्चुगीज, डैनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच। तो आंसर है जी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ये कदों बनी जी? 1664 दे विच। इस कंपनी का नाम की है? देश ओरिएंटल्स। ओके, तो एस्तादो दे इंडिया कंपनी किन्ना दी सी? ये सीगी पोर्चुगीज वाली। राइट, और ये ना पूरी तरह यानी कि ए वाली देश ओरिएंटल्स जो फ्रेंच कंपनी है ये पूरी तरह तुहानू मिलेगी जी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ओके, जदों कि अगर असी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की गल करांगे तो ये एक जॉइंट वेंचर सीगा, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पूरे तरीके दे नाल एक प्राइवेट कंपनी सी। हाँ, ये जरूर है कि इस दे विच जिहड़े क्वीनस है उन्हां दे शेयर हुंदे सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, who was the French king at the time of the establishment of French East India Company? जदों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई है उस समय जो फ्रेंच किंग है ये कौन है? लुइस 14, लुइस 13, लुइस 12, लुइस 11। द आंसर इज लुइस 14। ओके, और ये जो कंपनी है इनका आइडिया लुइस 14 का नहीं सी। ठीक है, ये आइडिया किसने दिता सीगा?
जीन बैप्टिस्टे ने। ओके, दिस नेम विल आल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ है। और ਇਹ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ आई सी। ओके, एंड इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੌਲੀਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਓਕੇ, क्वेश्चन नंबर 55, हु फाउंडेड ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ in 1674। 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ खोजिया, किसने फाउंड किया? ड्यूप्लेक्स, वेलेस्ली, फ्रैंकोइस मार्टिन, none of the above। the answer is फ्रैंकोइस मार्टिन। okay, question number 56, who introduced subsidiary alliance। the subsidiary alliance जो है इसनू किसने इंट्रोड्यूस किया? आंसर आर जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स, फ्रैंकोइस मार्टिन, लॉर्ड वेलेस्ली, none of the above। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜੋਸੇਫ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਡਿਊਪਲੈਕਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ ਦਾ ਨਾਮ 100% ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਡਿਊਪਲੈਕਸ। ਓਕੇ, बट अगर तुहाडे कोल पुछया जांदा है कि सबसिडरी अलायंस नू प्रॉपर वे दे विच किसने स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज्ड मैनर दे विच किसने स्टार्ट किया, या फिर अगे तक कौन लैके गया, फिर इसका आंसर लॉर्ड वेलेस्ली होएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, कार्नेटिक वॉर्स वर फॉट बिटवीन। तो जिहड़ियां करनाटका दियां वॉर्स होईयां सी ਇਹ किस दे विचकार होईयां? ओके, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, इंडियन रूलर्स, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, नन, बोथ। तो इसका आंसर है जी बी, इंडियन रूलर्स, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। मेनली इहदे विच फ्रेंच एंड ब्रिटिश ही सीगे। ओके, यानी मेन रीजन इन्हां दा ही हुंदा सी, बट इन्हां दे विच जिहड़े इंडियन रूलर हैगे आ उन्हां ने भी पार्टिसिपेट कीता सी। ते किन्नियां कार्नेटिक वॉर्स होईयां सी जी? 3 होईयां सी। ओके, और सारियां ही वॉर नूं स्टार्ट होंदे अपने अपने रीजन सीगे जिन्हां दे बारे आपां अगे डिस्कस करांगे। क्वेश्चन नंबर 58, what was the reason behind the first Carnatic War। ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਵॉर ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵॉर ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਟਰੀਆ, ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਐਂਡ ਕਰਨਾਟਕਾ, 7-year war in Europe, none of the above। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਟਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵॉर ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵॉर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਐਂਡ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਓਕੇ, ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵॉर ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਓਕੇ, क्वेश्चन नंबर 59, which treaty was signed to end first Carnatic War। केड़ी संधि नू साइन किया गया ताकि पहली जो कर्नाटका वॉर है इसनू खत्म किया जा सके? ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैप्ली, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, none of the above। the answer is A, ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैप्ली। ऑलराइट, तो देखो ये ट्रीटी पहली कार्नेटिक वॉर नू खत्म करने लिए की गई, जिहड़ी पौंडीचेरी की ट्रीटी है ये दूसरी कार्नेटिक वॉर नू खत्म करने लिए की गई है, और पेरिस की ट्रीटी जो है ये तीसरी कार्नेटिक वॉर नू खत्म करने लिए की गई। इत्थे तुसीं याद रखना जिन्नियां भी ट्रीटीज़ होणगियां तिन्नां कार्नेटिक वॉर दियां तुहाडे लई मोस्ट इंपॉर्टेंट हैगियां आ, पहली ए, दूसरी पी, तीसरी पी, या तुसीं करोगे ए पो पा। ओके, एक्सला-शैप्ले, पो ते पौंडीचेरी, पा ते पेरिस। ओके, ये तीनों याद रखनियां। इस तो बाद फिर तुसीं इन्हां दे जिहड़े रीजन हैगे ने ये भी तुहानूं तिन्ने ही याद रहने चाहिए ने। पहला रीजन आस्ट्रिया करके होया है ना, आस्ट्रिया दी सक्सैशन दी प्रॉब्लम सी। दूसरा हैदराबाद एंड करनाटका दी प्रॉब्लम सी। तीसरा 7-year war जदों यूरोप दे विच होई है वो इसका कारण बनी। तां रीजन एंड ट्रीटीज तिन्ने ही वॉर्स दियां मोस्ट इंपॉर्टेंट रहणगियां। क्वेश्चन नंबर 60, बैटल ऑफ वंडी वॉश वॉज अ पार्ट ऑफ विच कार्नेटिक वॉर। तो जो वंडी वॉश की लड़ाई है
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਨੇਟਿਕ ਵੋਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਓਕੇ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਾਰਨੇਟਿਕ ਵੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਨੇਟਿਕ ਵੋਰ ਥਰਡ ਕਾਰਨੇਟਿਕ ਵੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਥਰਡ ਕਾਰਨੇਟਿਕ ਵੋਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਵੈਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਬਡੇਰਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਡੈਨਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਸੌਰੀ ਡੱਚ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀ ਵਾਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਕਾਰਨੇਟਿਕ ਵੋਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 61 ਟੂ ਅਨੈਕਸ ਬੰਗਾਲ which battle were fought by the British ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਬੋਥ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੋਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਬਕਸਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਪਲਾਸੀ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਪੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 62 who was the founder of Bengal ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ ਸਿਰਾਜੁद्दौला ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਓਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1717 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1727 ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਡੀ ਓਕੇ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਕੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63 who shifted the capital from Dhaka to Murshidabad ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਓਕੇ ਅਲੀ ਵਿਰਦੀ ਖਾਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਸਿਰਾਜੁद्दौला none of the above ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਅੱਗੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾ 1719 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਕਸੂਸਾ ਓਕੇ ਮਕਸੂਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64 ਆਫਟਰ ਵਿਨਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਟਲ ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ ਬਿਕੇਮ ਦ ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੰਡੀ ਵਾਸ਼ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਿਰੀਆ ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਾਮਨਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਿਰੀਆ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਿਰੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ ਐਂਡ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਆਲਰਾਈਟ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਲਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ ਕੰਪੇਅਰਡ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦ ਵਾਟ ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਹਾਈਵ ਲਾਇਨ ਫੌਕਸ ਟਾਈਗਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਹਾਈਵ ਯਾਨੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਨੀ ਦੇਣਗੇ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਕ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 when the battle of Plassey fought ਤਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ 23rd of June 1757 23rd of June 1556 20th June 1757 20th June 1759 the answer is 23rd of June 1757 ਇਹ ਸਿਰਾਜੁद्दौला ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ ਹੈਗਾ ਆ
मीर जाफर इसने सिराजुद्दौला नू बिट्रे किया सी, धोखा दिता सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 इन 1757 सॉरी सिराजुद्दौला अटैक्ड ब्रिटिश फैक्ट्री एट। तो इत्थे सिराजुद्दौला ने ना 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री है जिस दे उपर ना हमला किया सी। पूछा जा रहा है उस फैक्ट्री का नाम की है, कासिम बाजार, कैलकटा, मैड्रास, बॉम्बे। तो आंसर रहेगा जी कासिम बाजार। ओके, उन्हें ना ब्रिटिश नू बोलिया सी कि तुसी फोर्टिफिकेशन ना करो, यानी कि हुण प्लीज़ तुसी किलाबंदी ना करो, ये साडी जगह हैगी है, ठीक है। पर ब्रिटिश नहीं मन्ने, उन्होंने मना करता। तो फिर सिराज नू गुस्सा आया, उन्हें की किया अपने 30,000 सोल्जर्स लैके और एक कासिम बाजार च पहुंच गया, उत्ते ब्रिटिश फैक्ट्री के उपर इसने हमला करता सीगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 वेयर द ब्लैक होल ट्रैजेडी टुक प्लेस। तो जो ब्लैक होल ट्रैजेडी है ये किहड़ी जगह ते हुई? मैड्रास फोर्ट, कैलकटा फोर्ट, केरला चर्च, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज कैलकटा फोर्ट। ओके, कैलकटा दे विच किहड़ा फोर्ट हैगा आ? फोर्ट विलियम, राइट। इत्थे ही ब्लैक होल ट्रैजेडी हुई सी। ओके, एंड जिहड़ा मैड्रास फोर्ट है ये किहड़ा हैगा जी? सेंट जॉर्ज फोर्ट मैड्रास दा फोर्ट है, राइट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 69 हु नरेट द ब्लैक होल ट्रैजेडी। ब्लैक होल ट्रैजेडी के बारे दे विच किसने दस्सिया? सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, हैक्टर मुनरो, जॉन जेड होलवेल। तो इसका आंसर रहेगा जॉन जेड होलवेल। ओके, तो देखो जिहड़ा सिराजुद्दौला है उन्हें की किया सीगा 146 ब्रिटिश सोल्जर जिहड़े हैगे आ उन्होंने बहुत ही छोटे जे कमरे दे विच कैद करता, ना इत्थे कोई खिड़की सी ना ही कुछ होर सी, ठीक है, तो ना ही इत्थे प्रॉपर ऑक्सीजन सीगी। इस करके रात रात दे विच ना सफोकेशन दे करके इहदे विचों काफ़ी सारे परसन 120 to 123 परसन जो है इत्थे मारे गए सी, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हैगे ब्लैक होल ट्रैजेडी। इहदी डिटेल मैं करवाई हुई है, डिटेल दे विच जो वीडियो दित्तियां हुई हैं उन्होंने देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज साइंड बिटवीन। अलीनगर की ट्रीटी किस किस दे विचकार साइन हुई? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला वैटसन, सिराजुद्दौला हैक्टर मुनरो, मीर कासिम रॉबर्ट क्लाइव। तो आंसर है जी सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये कदों हुई ट्रीटी? 2 जनवरी 1757 दे विच। ओके, हाँ जी, जदों ये वाली ट्रीटी हुई है ना तो उस तो बाद फिर अंग्रेज़ों नू की मिल गया जी? अंग्रेज़ों नू फोर्टिफिकेशन का अधिकार मिल गया, जिस तो इन्हों सिराजुद्दौला मना कर रहा सी, जिस दे करके फिर इन्हें कासिम बाजार की फैक्ट्री के उपर भी हमला किया सी, है ना। और इस दे नाल नाल इन्हों इत्थे अपने सिक्के मिंट करन दा भी अधिकार मिल गया मुंबई दे विच, ठीक है। तो इस तरह फिर जिहड़े अंग्रेज़ हैगे ने धीरे धीरे करके इत्थे दे पोलीटिकल सिनेरियो दे विच घुसना स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 Who became the नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला तो बाद बंगाल का नवाब कौन बनया? मीर कासिम, मीर जाफर, सजाउद्दीन, नन ऑफ द अबव। आंसर इज मीर जाफर। देखो यही वाला मीर जाफर है जिसने सिराजुद्दौला नू पलासी की लड़ाई दे विच धोखा दिता सी और इनू ही फिर अंग्रेज़ों ने वादा किया सी अगर तू साडा साथ देगा तो असीं तैनू नवाब बना देंगे। इसे करके फिर इसनू नवाब बनाया गया सी। ओके, यस, बट ये भी ज़्यादा देर नहीं टिकया, बाद दे विच इनू हटाता, ठीक है। एंदे तो बाद फिर इन्होंने मीर कासिम नू नवाब बनाया सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 वैन द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। तो जी बक्सर की लड़ाई है ये कदों हुई है? 22 अक्टूबर 1764, 20 अक्टूबर 1764, 22 नवंबर 1764, 20 नवंबर 1764। तो इसका आंसर रहेगा जी 22 अक्टूबर 1764, राइट। इत्थे हुई है जी बक्सर की लड़ाई। ऑलराइट, यस। क्वेश्चन नंबर 73 हु लीड द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर की लड़ाई दे विच किसने ब्रिटिश आर्मी नू लैड किया सी? ओके, हैक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स, नन ऑफ द अबव। आंसर है हैक्टर मुनरो। ओके, तो जिहड़ा रॉबर्ट क्लाइव है ये पलासी की लड़ाई के टाइम सीगा, है ना, पर बक्सर की लड़ाई के वेले कौन आ गया? हैक्टर मुनरो आ गया। ओके, दूसरी साइड अगर देखिए यानी कि इंग्लिश नू छड्ड के दूसरी वाली साइड एक कंबाइंड फौज हैगी है
जिस दे विच एक तां पहला अवध दा नवाब है, नाम की है जी सुजाउद्दौला। दूसरा मुगल एंपरर है, नाम की है शाह आलम। तीसरा है मीर कासिम। ओके, ये सारे जो ने मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट सीगे, पर ब्रिटिश जिहड़े हैगे आ इन्हां तिन्नां नूं हरा के जित गए सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, बाय विच ट्रीटी द बैटल ऑफ बक्सर हैड बीन ब्रॉट टू एन एंड। तां किहड़ी संधि कीती गई जिस तो बाद जो बक्सर दी बैटल है इसनूं खत्म किया गया? ट्रीटी ऑफ मैड्रास, ट्रीटी ऑफ कैलकटा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ मुंबई। तो इसका आंसर रहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, हाँ जी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है ना, इस दे नाल बक्सर दी बैटल खत्म हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ठीक है। तो इनू ना दो हिस्सों के साइन किया गया सी। ओके, तो जो 12 ऑफ अगस्त नूं शाह आलम टू एंड निजामुद्दौला इन्हां ने रॉबर्ट क्लाइव दे नाल इस ट्रीटी नूं साइन किया सी। दूसरा जो 16 ऑफ अगस्त नूं साइन किया गया ना, ये जो है सिजाउद्दौला दे नाल क्लाइव ने साइन की सी। तो इसका मतलब चाहे जो बक्सर की लड़ाई हुई उस दे विच पार्टिसिपेट तो हैक्टर मुनरो ने किया, बट अंग्रेज़ों के वलों जदों इलाहाबाद की ट्रीटी की गई उदों फिर रॉबर्ट क्लाइव नूं ही भेजा गया सी इस ट्रीटी नूं साइन करन दे लई, ठीक है। तो इस ट्रीटी तो बाद इन्हां नूं इलाहाबाद का एरिया, कड़ा का एरिया ये मिल गया सीगा सारा का सारा, ठीक है। तो इस दे नाल फिर इत्थे दा रेवेन्यू भी इन्हां दे कोलों आना स्टार्ट हो गया सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोलों। क्वेश्चन नंबर 75, हु इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन बंगाल। तो बंगाल दे विच जो डायरकी सिस्टम है ये किसने स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, हैक्टर मुनरो, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा जी रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो जिहड़ा बंगाल दे विच डायरकी सिस्टम आ रहा ना, ये रॉबर्ट क्लाइव ने ही स्टार्ट किया। ओके, पर बाद दे विच इनू ना कंटिन्यू तो रखा गया 1772 तक, और फिर इनू बाद दे विच एक परसन ने आके खत्म कर दिता, ठीक है। किसने खत्म किया सीगा? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसनू अबॉलिश कर दिता। तो दो तरह के क्वेश्चन आते होंगे हैं कि बंगाल दे विच जो डायरकी सिस्टम है ये किसने स्टार्ट किया? तो आंसर रहेगा रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का जो डायरकी सिस्टम है इसनू खत्म किसने किया? तब फिर आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, by which treaty did English East India Company gain the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਐਂਡ ओडिशा ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ? ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ मुर्शिदाबाद। तो इसका भी आंसर है जी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, तो इस तो बाद इन्हों बंगाल, ओडिशा, बिहार यानी कि बोब दे सारे अधिकार मिल गए सीगे दीवानी राइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, हु वॉज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ बंगाल बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो जदों इलाहाबाद की ट्रीटी हुई उस तो बाद रॉबर्ट क्लाइव ने एक परसन नूं ना दीवान बनाया सी बंगाल दा। तो इत्थे पूछा जा रहा है उसे परसन का नाम, ठीक है। ऑप्शंस हैगे हैं मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, मोहम्मद रजा खान, नन ऑफ द अबव। तो आंसर है जी मोहम्मद रजा खान, ठीक है। इसे नूं ही बंगाल का डिप्टी दीवान बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन द बैटल ऑफ टैलीकोटा फॉट। तो पूछा जा रहा है कि जो बैटल ऑफ टैलीकोटा है ये कदों लड़ी गई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है। 1564, 1565, 1566, 1567। द आंसर इज 1565। ओके, किस किस दे विचकार हुई है? तो ये हुई जी विजयनगर एंपायर वर्सेस डेक्कन ग्रुप। ओके, तो इस दे विच जो विजयनगर एंपायर है इसकी हार हो गई सीगी ते डेक्कन ग्रुप जित गया सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मैनी एंग्लो मैसूर वॉर्स वर फॉट। तो जो एंग्लो मैसूर दियां वॉर्स ने ये किन्नियां हुईयां? 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर रहेगा जी 4, ठीक है। पहली बैटल 1767 दे विच हुई है, दूसरी 1780 तो लैके 84 दे विच हुई, थर्ड बैटल 1790 तो लैके 92 तक हुई है, एंड
ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਹੂ ਵਾਸ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਲॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेरेल्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ लॉर्ड वेरेल्स्ट। ਓਕੇ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 80, ਹੂ ਵਾਸ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड वेरेल्स्ट। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਵॉरेन हेस्टिंग्स। ਓਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? लॉर्ड वेरेल्स्ट ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? लॉर्ड कॉर्नवालिस ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹੇਗਾ लॉर्ड वेलेस्ली। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 82, ਹੂ ਵੋਨ ਦ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ? ਟਿਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਡਰਾ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਟਿਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਡਰਾਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? 1769 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 83, which treaty was signed to end the second Anglo-Mysore war। दूसरी Anglo-Mysore war ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫालतू ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ? ट्रीटी ऑफ मैड्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो इसका आंसर है जी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, बाय विच ट्रीटी द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज एंडेड। तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर किस संधि दे नाल खत्म की गई? ट्रीटी ऑफ मैड्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज ट्रीटी ऑफ रंगपट्टनम। ओके, इन विच एंग्लो मैसूर वॉर टीपू डाइड। किन्नवें नंबर दी एंग्लो मैसूर वॉर दे विच जो टीपू है इसकी डेथ हो गई सी? फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड और फोर्थ। आंसर रहेगा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर दे विच टीपू दी डेथ हो गई सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा अंपायर। तो मराठा अंपायर दा फाउंडर ये कौन है जी? शिवाजी महाराज, शंभाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, पेशवा विश्वनाथ। तो इसका आंसर की है जी? इसका आंसर रहेगा शिवाजी महाराज। ठीक है, तो छत्रपति भी इन्हों ही बोलते हैं, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इन्होंने मराठा अंपायर को फाउंड किया सी। क्वेश्चन नंबर 87, हु इज कंसीडर्ड एज द सैकेंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम। तो देखो इत्थे पूछा जा रहा है कि मराठा किंगडम का दूसरा फाउंडर किसनों बोलते हैं? पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, शाहूजी महाराज, पेशवा बालाजी बाजीराव। तो आंसर है पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, जिहड़े पहले फाउंडर ने वो तो शिवाजी महाराज ही हैगे है, पर दूसरा फाउंडर मन्निया जाता है पेशवा विश्वनाथ नूं। ओके, तो विश्वनाथ जो हैगे है इन्होंने शाहू जी महाराज की हैल्प की सी जदों उन्होंने मुगल औरंगजेब दे मतलब कि अगेंस्ट हमला किया सीगा, राइट। यानी औरंगजेब ने उन्होंने हमला किया सी एंड ताराबाई दे अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसी दे विच इन्ने ही हैल्प की सी। इसे करके जिहड़ा शाहू जी महाराज है उन्होंने फिर विश्वनाथ नूं काफ़ी सारियां पावर्स दे दित्तियां सीगियां पेशवास दियां। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ एट। शिवाजी जी जो गद्दी है यानी कि जो इन्हां दा राज तिलक वगैरह है ये कित्थे होया? बीजापुर, पूना, रायगढ़, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज रायगढ़। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, द गोरिल्ला वॉरफेयर वॉज पायनियर्ड बाय हुम। तो गोरिल्ला वॉरफेयर जो है ये किसने स्टार्ट की सी? बाजीराव, ताराबाई, विश्वनाथ, शिवाजी। तो आंसर है जी शिवाजी। ठीक है, एंड द यूज शिवाजी ने ना मुगल्स दे अगेंस्ट एंड बाकी जिहड़ियां लीडिंग पावर सीगियां उन्हां दे अगेंस्ट कीता सीगा गोरिल्ला वॉरफेयर दा, जिस दे विच छुप के वॉर करदियां सीगियां, है ना, इन्हां दियां आर्मीज
ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। क्वेश्चन नंबर 90, हु वॉज द फर्स्ट मराठा पेशवा हु अटैक्ड दिल्ली? तो पहले मराठा पेशवा जिन्हों ने दिल्ली के उपर अटैक किया, विश्वनाथ, बाजीराव वन, ताराबाई, शिवाजी। इसका आंसर है बाजीराव वन, ठीक है। और इन्हों ने मन्निया जाता है कि ये मोस्ट सक्सैसफुल पेशवा सीगे, ओके। इन्हों ने करीब करीब 72 वॉर्स है जो कि जितियां, ओके। और बाजीराव मस्तानी जो हैगी है यह भी इन्हों के नाल ही रिलेट करती है। और बाजीराव मस्तानी एंड बाजीराव वन इन्हों के लव अफेयर के उपर ही मूवी बनी सी, है ना, बाजीराव मस्तानी। और ये विश्वनाथ के बेटे सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 91, विच ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड जय सिंह? तो शिवाजी एंड जय सिंह के विचकार केड़ी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ मैड्रास, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ कोची। तो आंसर है जी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ओके। इनू कदों साइन किया गया? 11 जून 1665 दे विच, ठीक है। देखो उस टाइम की होया, जिहड़ा जय सिंह है ये मुगल एंपायर का मिलिटरी कमांडर सीगा और उन्हें ना पुरंदर के उपर कब्जा कर लिया। तो जिहड़े शिवाजी है फिर इनू इन्हां दे नाल एक ट्रीटी साइन करनी पई सी और ऐसे ट्रीटी के अकॉर्डिंग शिवाजी ने अपने जिहड़े फोर्ट्स हैगे है ये मुगल्स नू सौंप दिते सीगे और नाल ही इन्हां ने 5000 सोल्जर्स भी इन्हां नू प्रोवाइड कीते सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 92, वॉट वॉज चौथ? तो चौथ की चीज़ है? अ रिलीजियस टैक्स, लैंड टैक्स, इरीगेशन टैक्स या फिर मुस्लिम टैक्स? तो यह है जी एक लैंड टैक्स, ओके। और ये जो लैंड टैक्स है ये मराठा अंपायर वालों जिहड़ियां नेबरिंग स्टेट्स हुंदियां सी उन्हां दे उपर लगाया जांदा सी, ठीक है। और इन्हें एक एनुअल टैक्स हुंदा सी जो कि जिन्नी भी प्रोडक्शन होई हुंदी है नॉर्मली हुंदा 25% हुंदा सीगा। देखो चौथ का मतलब की हुंदा है 1/4, है ना, यानी कि 25%। तो उन्हां लैंड्स दे उपर लगाया जांदा सीगा जो कि नॉमिनल मुगल रूल के अंडर हुंदियां सी, ओके। और एक तरह राजा नू ही ये दिता जाने वाला एक ट्रिब्यूट मन्निया जाता सी, ओके। तो चौथ के नाल नाल एक होर टैक्स है जो कि शिवाजी के टाइम के उपर बहुत ज़्यादा फेमस रहा सीगा, ठीक है। नाम है सरदेश मुखी। ये दोनों ही जिहड़े टैक्स ने ये शिवाजी महाराज ने ही इंट्रोड्यूस किए सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 93, ड्यूरिंग शिवाजीज रूल द काउंसिल ऑफ द स्टेट कंसिस्टेड ऑफ? शिवाजी के टाइम के उपर एक काउंसिल बनाई गई सी स्टेट की, इहदे विच किन्ने मिनिस्टर हुंदे सी? 10, 12, 8 या फिर 18? तो आंसर है 8 मिनिस्टर्स, ठीक है। तो 8 मिनिस्टर्स की एक काउंसिल ना शिवाजी महाराज ने बनाई हुई सी। इस काउंसिल नू की बोलते सी? इसनू बोलिया जाता सी अष्ट प्रधान, ओके। और ये जिहड़े अष्ट प्रधान हुंदे सी ना इन्हां नू 1674 दे विच शिवाजी वालों फॉर्म किया गया सी और उनका जिहड़ा चीफ मिनिस्टर हुंदा सी उसे नू ही बोलते सीगे पेशवा, है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 94, ट्रीटी ऑफ संगोला वॉज साइंड बिटवीन हुम? तो जिहड़ी संगोला की ट्रीटी है ये किस किस दे विचकार साइन हुई? राजा राम टू नाना साहिब, राजा राम टू पेशवा विश्वनाथ, राजा राम टू बाजीराव, नन ऑफ द अबव? तो आंसर है जी राजा राम टू एंड नाना साहिब, ओके। और ये जो ट्रीटी है ना ये बस पेशवा नू सारे अधिकार देने के लिए की गई सी, यानी इस ट्रीटी तो बाद पेशवा दे कोलों ऑलमोस्ट सारे अधिकार आ गए सीगे और फिर इन्हां ने पूना नू अपनी कैपिटल बना लिया सी पेशवास ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 95, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन? जो तीसरे नंबर की पानीपत की बैटल हुई, इत्थे पहली दूसरी की गल नहीं हो रही, तीसरी बैटल की गल हो रही है। ये किन्ना किन्ना दे विचकार हुई? नादिर शाह एंड मराठास, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, नादिर शाह एंड मैसूर एम्पायर, अहमद शाह अब्दाली एंड मैसूर एम्पायर? तो इसका आंसर है अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के विचकार हुई सी, ठीक है। तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कदों है? 1761 दे विच, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 96, हु इज नोन एज नाना साहिब? नाना साहिब के नाम के नाल किन्हां नूं जानिया जांदा है? विश्वनाथ, शाहू जी महाराज, बालाजी बाजीराव या फिर शंभाजी महाराज? तो इसका आंसर है जी बालाजी बाजीराव, ओके। क्वेश्चन नंबर 97, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज स्टार्टेड विद विच ट्रीटी? तो पहली एंग्लो मराठा वॉर जदों हुई है इसनू केड़ी ट्रीटी दे नाल स्टार्ट किया गया है? इत्थे स्टार्ट की गल हो रही है एंड दी नहीं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पोरबंदर,
ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी। तो आंसर रहेगा जी ट्रीटी ऑफ सूरत। ओके, तो जिहड़ी सालबाई दी ट्रीटी है एंदे नाल ही खत्म हुई सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, 12 मराठा चीफ्स led by नाना फडनवीस were known as। तो नाना फडनवीस की प्रधानगी दे विच 12 मराठा चीफ का एक ग्रुप हुंदा सीगा। ठीक है, इनू किहड़े नाम दे नाल जानदे सी? अष्टप्रधान, पंच शासक, बार भाई काउंसिल, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज बार भाई काउंसिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। केड़ी संधि दे नाल जो पहली मराठा वॉर है ना, एंग्लो मराठा वॉर, इसका एंड किया गया? ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सरबाव, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ पूना। तो आंसर है जी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ओके, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ब्रिटिश एंड मराठा ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ 20 ईयर्स ਦੇ ਲਈ बिल्कुल पीस एस्टैब्लिश हो गई सी और 20 ईयर तो बाद फिर दूसरी एंग्लो मराठा वॉर आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, हु लेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो पहली एंग्लो मराठा वॉर ਦੇ ਵੇਲੇ ब्रिटिश ਨੂੰ किस ने लीड किया सी? ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, हु रेटिफाइड द ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो जो सालबाई की ट्रीटी हुई इसके ऊपर साइन किसने किए? हेस्टिंग्स एंड माधवराव टू, हेस्टिंग्स एंड बाजीराव, हेस्टिंग्स एंड नाना फडनवीस, नन ऑफ द अबव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आंसर है हेस्टिंग्स एंड नाना फडनवीस के विचकार पहली जो ट्रीटी जो है ना सालबाई दी ए हुई सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 102, ट्रीटी ऑफ बेसिन वॉज साइंड बिटवीन। बेसिन दी ट्रीटी किस किस दे विचकार हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नाना फडनवीस, ब्रिटिश एंड बाजीराव टू, ब्रिटिश एंड विश्वनाथ, ब्रिटिश एंड शिवाजी महाराज। आंसर है ब्रिटिश एंड बाजीराव। ओके, तो ये ना एक सबसिडरी अलायंस ही सीगा। ऑलराइट, और जो पूना की बैटल हुई है, पूना की बैटल तो बाद ही फिर इस ट्रीटी को साइन किया गया सी और इनू 1802 दे विच साइन किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 103, ट्रीटी ऑफ राजघाट वॉज साइंड बाय। राजघाट की ट्रीटी इसनू किस किस वालों साइन किया गया? भोसले, होलकर फैमिली, सिंधिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जी होलकर। ओके, तो जो यशवंत राव होलकर है इन्हों ने साइन किया सी, पर जिहड़े भोसले हैगे आ जिहड़े नागपुर तो बिलोंग करते हैं, ठीक है, इन्हों ने किहड़ी ट्रीटी साइन की सीगी? दियो गांव की ट्रीटी। मैं इन्हों के बारे में डिटेल वीडियो विच करवाई हुई है, देख लेना। ओके, इन्होंने सारी क्लैंस के बारे दे विच। आफ्टर दैट जिहड़ी सिंधिया है इन्हों ने किहड़ी ट्रीटी की सी? सूरजी अंजान गांव की ट्रीटी। ठीक है, और होलकर ने की फिर राजघाट की ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 104, द बैटल ऑफ किरकी वॉज फाउंड बिटवीन। यानी जिहड़ी किरकी की बैटल है ये किस किस दे विचकार हुई? ब्रिटिश नाना फडनवीस, ब्रिटिश बाजीराव, ब्रिटिश बाजीराव टू, ब्रिटिश ताराबाई। तो आंसर है जी ब्रिटिश एंड बाजीराव टू दे विचकार किरकी की बैटल हुई है और मन्निया जाता है एक डिसीजिव बैटल सी। इसे तो बाद जिहड़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने फिर बाजीराव टू तो सारा का सारा जो अधिकार हैगे ने खोले सी। ठीक है, और अपने आप को मराठा साम्राज्य विच एस्टैब्लिश करता सी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 105 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु वॉज द लास्ट मराठा पेशवा। तो आखिरी मराठा पेशवा का नाम दसो? विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव टू, ताराबाई। तो आंसर की है जी बाजीराव टू। ठीक है, इन्हां दे नाल ही जिहड़े मराठा पेशवा सीगे ये खत्म हो गए सी। ओके, हाँ जी, तो फिर इस तो बाद अगर असीं कल गल करदे हां तो कल तुहानूं 7th लैक्चर मिलेगा हिस्टरी का। ओके, जिस दे विच असीं पंजाब नूं देखांगे, जिस दे विच सारे ही सिख गुरुआं दे बारे दे विच डिस्कस करांगे और ऐदां दे क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाणगे जो कि तुसीं सिख हिस्टरी के बारे दे विच शायद ही पढ़े होण। ओके, सारे ही इंपॉर्टेंट सिख हिस्टरी, बिकॉज तुसीं पंजाब दे एग्जाम की तैयारी करते हो अगर, तो सिख हिस्टरी तुहाडे लई मोस्ट इंपॉर्टेंट हुंदी है। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह के बारे दे विच, दलीप सिंह के बारे दे विच, महारानी जिंद कौर के बारे दे विच, बंदा सिंह बहादुर के बारे दे विच, हरि सिंह नलवा के बारे दे विच, यानी सब के बारे दे विच असीं डिस्कस करना है। राइट, इसलिए तुसीं फिर ये सारे दे सारे जिहड़े सैशन हैगे ने इन्हां नूं बिना मिस किते देखना है। ओके, आई होप तुहानूं ये सैशन अच्छा लग्या होएगा।
If you like the video, then do subscribe the channel and share this mock test with your friends and your study groups. Okay, with these words, thank you so much. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ PDF ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਐਰੀਡੀਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ. ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ. ਟੇਕ ਕੇਅਰ.